नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय फौज के एक टू द लेवल कोर इन्फेंट्री ऑफिसर के बारे में जिन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन द नॉर्थ ईस्ट में हिस्सा लिया है, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ मिजोरम, जिन्होंने कश्मीर के इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी हिस्सा लिया है, इंक्लूडिंग रेजिंग द 16 बिहार रेजिमेंट जो 2020 में गलवान वैली के चाइनीज इंट्रूजन के खिलाफ डट के खड़े हुए थे, इंक्लूडिंग अर्निंग न्यूमरस गैलेंट्री अवार्ड्स, including the commanding officer Colonel Santosh Babu being awarded the Mahavir Chakra posthumously. Commissioned in the 9 Bihar Regiment, being a part of the 11 Bihar Regiment during the Bangladesh Liberation War of 1971 and later commanding the 11 Bihar Regiment, raising the 16 Bihar Regiment, taking all the pains of an infantryman, जितने भी problems होते हैं in the most difficult terrain, operating in the most inhospitable terrain, ये सब पेन ये आदमी झेल चुका है as a normal regular infantryman of the Indian Armed Forces. 1971 वॉर में वो मुक्ति वाहिनी से बहुत क्लोज थे, including understanding their own frustration and anger against the Pakistani forces, including taking part in the liberation of Shatkhira city inside Bangladesh. आज हम एक ऐसे भारतीय आर्मी ऑफिसर के बारे में बात करने वाले हैं जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ट्रांसपोर्ट भी किया था फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, मतलब फ्रॉम बांग्लादेश, टू प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स इनसाइड इंडिया, taking care of these prisoners of war as per the Geneva Conventions. उनके खुद के बटालियन ने कॉक्स बाजार में एम्फीबियस लैंडिंग्स किया with 2 companies being deployed, and the rest of the battalion had taken part in the western side of the operations against Pakistan in Bangladesh, and he served in the western part of the Bangladesh operations as captain. The entire nation owes a ton of gratitude to men like this, and let's welcome Brigadier Suresh Dhyandev Salukhe. So welcome Brigadier Salukhe sir to our program, and as being a veteran of the Bangladesh Liberation War, I heartily welcome you to our program so that we can learn from you especially about your experiences in the war, and you can also tell the world about what you and your battalion did for the liberation of Bangladesh in fighting the Pakistani Army of Occupation. So I would like to start with a brief introduction of you before the war started. So how did you actually join the armed forces and what were you doing before the year 1971, sir? Thank you, Mr. Das Gupta. It's my pleasure to converse with you. See, right from the beginning, that is in school, we had interest in the army, joining army, and there are very few, because during those days, people used to go for only 2 careers, engineers or doctors. Okay. So there was never a motivational lecture to join the Indian Army. Okay. Though 1 or 2 teachers who used to take NCC sometimes talk about the army, Okay. but in the house or otherwise there wasn't any such thing. Okay. But you see, as it happens, the peer pressure. I got one good friend who was always used to talk about the army. Mm-hmm. Though his father was barrister, and 3 of us always wanted to join army right from class 8. Okay. Joined NCC, but then my physique was such short, lean and thin figure, so people thought I would not join the army. Anyway, so we kept on going, and then since everybody went for the science side after getting distinction, I also joined science side. Not that I liked it, but then that was the trend. Whoever gets good marks joins the science side. Okay. Though Right. my father told me, I said, don't join science side because you have got a different attitude altogether. Okay. So it will be better if you join the arts or other side. See, but during those days again, arts was considered something, the people who could not get good marks will join arts and become BA. So I joined science side, and thereafter, since my friend was very keen,
he used to talk about the army. First year, when second year, I decided to appear for the UPSC examination. Okay. Now we had a very good, tall and handsome students who used to be under officer in the NCC. Acha. So after looking at them, we thought that we may not have a chance. Acha. But then we had a very good advisor, another trainer, who used to that time train the students for the Indian Army. His name is Mr. Vaidya, Okay. and he stayed in Kolhapur next to the bank. Unfortunately, he is no more. But then, when I went to him, he told me, he says, "Look, Suresh, army is not only for those bullocks. They require people who are intelligent and also well balanced. So I suggest you go all out. You will be able to do it." So I appeared for the examination, studied a lot. In fact, I'll tell you frankly, there were 5 of us who used to study for the UPSC examination, including his son. Okay. So being college students, 4 of them used to always chat, Mm-hmm. and I used to do the hard work, keep on noting down everything. Okay. The teacher would come, not he. He says, "I'm not a teacher." He says, "I'm a guide." इसे ऐसे ऐसे करना है, आप जिस तरह से करोगे आपको फायदा होगा, नहीं करोगे आपका नुकसान होगा। वो अपने बेटों को भी कभी नहीं ये करता था। तो उसके अंदर थे एक सिविल सर्जन का लड़का था, एक फेमस मराठी एक्टर का लड़का था, एक फेमस रेस्टोरेंट का लड़का था। अच्छा. सभी चाहते थे, लेकिन वो पढ़ाई भी करते नहीं थे। मैं करता था तो उनको बहुत अच्छा लगा, एंड मुझे किताब देता रहा, मैं करता रहा। ऐसे करके मैं पढ़ाई कर दिया पूरा, लेकिन मैं बताया नहीं किसी को कॉलेज में। लेकिन अगर मैं बता दूं तो सब हंसने लगेंगे कि ये आर्मी में जा रहा है। हाँ, Right. ये चांस, हाँ ये होता था उस समय बराबर के। Now it's very तो चलो। different, sir. अभी बहुत different है. अभी Beg your pardon? Now it is very different. अभी बहुत different है. अभी people, I mean, respect even, I guess, IMA cadets और कोई अगर NDA के preparation कर रहा है, we respect them a lot. Like जाओ देश का सेवा Yes. करो. Now people I realize that time also they were interested. Lot of people were interested, हम्म, but वो पैसा नहीं देना चाहते थे, हम्म, क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। वो सोचते थे कि मेरा हाइट 6 फीट है, मुझे मूछे है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, मैं अंडर ऑफिसर हूँ एनसीसी में, मैं ऐसे ही जाऊंगा। अच्छा. और ये दुर्दैवी की बात है कि अगर वो लोग इस तरह सा गाइडेंस ले लेते तो उसमें से कम 50% हो जाते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, इसलिए नहीं हुआ। हमने गाइडेंस लिया। मैं एग्जामिनेशन के लिए भी स्टोरी है, मैं किसी को बताना नहीं चाहता मैं आर्मी के लिए जा रहा हूँ ताकि वो लोग मजाक उड़ाएंगे। अच्छा. तो मैं सिविल ट्रक से गया मुंबई तक। वहां फिर माय फादर ना इनिशियली वो मुझे बोलते थे कि मत ज्वाइन करो, गो टू सम अदर करियर, हम्म, बट उन्होंने देखा कि मेरा वो दृढ़ निश्चय है, हम्म, तो उन्होंने मुझे बैकिंग दिया और खुद आए वो मेरे साथ मुंबई ताकि मेरा रहने का अच्छा इंतजाम हो सके। मेरे को 2 दफा, क्योंकि मुझे खाने का बड़ा शौक था, अच्छा. तो अच्छा खाना दे सके। अच्छा. तो अभी कुछ बोलते ना, कुछ लोग जो जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा बन जाते हैं, खास तौर आर्मी ज्वाइन करने में। तो सबसे पहला था मेरा पहला फ्रेंड कैप्टन शिरगांवकर, लेफ्टिनेंट कर्नल शिरगांवकर, ही इज नो मोर। दूसरा था ये गाइडेंस इंस्टीट्यूट के मिस्टर वैद्या, ही इज नो मोर। थर्ड इज माय फादर हु केम, ही वाज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट आर्मी, पर उनको बहुत इंटरेस्ट था, वो आके उधर मेरे रहने का बंदोबस्त करना वगैरह। चौथा था वो शेतकरी सहकारी संघ कोल्हापुर में, एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, महाराष्ट्र में उसका नाम है, अभी तो इतना नहीं है। तो उनके जो डायरेक्टर थे बाबा साहब नेस्टिकर, तो उन्होंने मेरे लिए एकोमोडेशन अरेंज किया था। क्योंकि उस समय 1966 में मुंबई में जाना फिर कहीं रहना, मतलब ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा अलग बात था, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे। अच्छा. तो उस हालत में हाँ. आपका रहने का बंदोबस्त अच्छा हो जाता है, खाने का बंदोबस्त अच्छा हो जाता है। फिर मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं पहले दिन परीक्षा का पहले दिन यूपीएससी का मैं देने भाई घूमने गया, कहाँ वो भारतीय विद्या भवन है। अच्छा. तो मैं 1 किलोमीटर पहले चला गया, मैंने बोला कहाँ है भाई, उसने बोला वापस जाओ। तो फिर मैं वापस जा, अच्छा. फिर उसने बोला
तो इस तरह से ढूंढ निकाला, क्योंकि हमने पैदल ही जाना था, उसको इतना आइडिया नहीं था। चलो मैं पैदल चला गया इसके अंदर परीक्षा के लिए, और जब पेपर आया तो मुझे इतना इजी लगा कि 3 घंटे का पेपर में 1.5-2 घंटा में खत्म करता था। तो जो एग्जामिनर थे वहां, सुपरवाइजर, वो मेरे पास आके पूछते हैं कि भाई आपका क्या हो गया, मेरा पेपर तो खत्म हो गया। तो मेरा पेपर देख करके दूसरे को कुछ बताना चाहता था, तो मैंने बोला नहीं, तो मैं अपना पेपर खत्म करके बैठता था। इस तरह से मेरे पेपर खत्म हो गए। बहुत आसान मुझे लगा, क्योंकि मैं पूरा साल पढ़ाई किया था। अच्छा। आ गया, मुझे मेरे शिक्षक जो थे, गाइड मिस्टर बज्जा ने बताया कि आपका सब अच्छा हो गया। उसके बाद मैं भूल गया। तो एक दिन रात को 11 बजे मेरा भाई लेके आया न्यूज़पेपर का एक कटिंग, न्यूज़पेपर के 5वें पान में था, जिसके अंदर यूपीएससी परीक्षा में जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनके बारे में विवरण था। उसके अंदर मेरा नाम था। अच्छा। मुझे मेरे कोई नोटिस नहीं आया यूपीएससी का, तो उसको किसी ने, उसके दोस्त ने दे दिया मेरे भाई को। तो ये मेरा भाई भी इसके अंदर एक हिस्सा है, अशोक। तो देख करके मैं हैरान हो गया, क्योंकि उससे मुझे टाइम मिल गया इंटरव्यू को तैयार करने के लिए। नहीं तो मुझे 2 या 3 दिन 4 दिन पहले इंटरव्यू के लिए बता देते, फिर मैं तैयार नहीं कर सकता। तो मैं लेके गया, तो उन्होंने अगेन गाइड जो थे मेरे वैद्य सर, उन्होंने फिर वो ब्लॉक टेस्ट, वो क्या क्या टेस्ट होता है, किस तरह से है, मतलब वो सिखाते नहीं है, क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजी, आप झूठ नहीं बोलना चाहिए। साइकोलॉजी अगर आप झूठ बोलते हैं तो दूसरे टेस्ट में आप पकड़े जाते हैं, या कई पकड़े जाते हैं। तो उनको अगर पता चल गया तो सिलेक्शन नहीं होता है, ये उनका कहना था। तो आपको जो आता है, आप जो दिल में है वही बताना चाहिए, चाहे पिक्चर टोस्ट हो। तो उस तरह से हमारा ट्रेनिंग हुआ था, बिना कोई झूठ सीखे, बिना कोई झूठ बोले, अपने आप को बनाना एक ऑफिसर की तरह। ऑफिसर का पहला क्वालिटी है कि ही शुड बी सिंसियर, he should be devoted, he should not tell lies, he should be straightforward, even at the cost of annoying someone। अगर वो बताता है तो फ्रैंक बोलना चाहिए। right। मेरा आया था इंटरव्यू इलाहाबाद में। अच्छा। जब पहले दिन गए इलाहाबाद सिलेक्शन सेंटर, मतलब ये एसएसबी के लिए सर? एसएसबी के लिए। ओके। एसएसबी के लिए मैं एसएसबी का बयान कर रहा हूँ कि किस तरह से वो अलग अलग चीजें जो होती है ना, कि वहां फिर लोगों ने मजाक उड़ा दिया जो आए थे नॉर्थ से। अच्छा। अरे यार क्या आया है, महाराष्ट्र से आया है। मैं चुपचाप बैठा रहा। जब कोई डिस्कशन होता तो मैं जबरदस्ती डिस्कशन करता था, तो उनको थोड़ा सा हिल गए लोग, और इस तरह से हमारा टेस्ट वगैरह हो गया। हम ठीक है, वो आखिरी टेस्ट था। प्रेसिडेंट ने थोड़ा मेरा ज्यादा देर इंटरव्यू लिया, तो लोगों को लगा कि ज्यादा देर लिया इसका मतलब ये फेल हो गया। ऐसे नहीं है। और जब टेस्ट का रिजल्ट निकला तो मुझे सिलेक्शन था, फिर मेडिकल हो गया, फिर इंटरव्यू है, उस मेरिट में आना, वो 1-2-3 महीने के बाद आ गया, वो हो गया। और फिर इंडियन डिफेंस एकेडमी, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो देहरादून में, उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गया। अच्छा। चला गया, जो कि पहला एकेडमी था, 1932 में ब्रिटिशर ने बनाया। फील्ड मार्शल मानेक शाह उसके पहले विद्यार्थी थे उससे। तो ज्वाइन किया, 2 साल वहाँ ट्रेनिंग तो बहुत ही खड़तर होता है, मतलब काफी लोग, लेकिन लोगों को बताया था ये ट्रेनिंग होता ही है इससे, फिर कोई उसके अंदर दया माया नहीं है। और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे बनाना चाहते हैं कि किसी भी युद्धकालीन हालात में हमारा अधिकारी जो है अपना छाप प्रकट कर सके। तो उस समय मैंने इन्फेंट्री को दिया। उसमें लोगों ने बोला कि आप इन्फेंट्री में क्यों जा रहे हैं? अच्छा। जैसे इन्फेंट्री वेरी टफ। बाकी जो सीनियर स्टूडेंट थे बोलते मत जाओ इन्फेंट्री में, क्योंकि वहां आपको पैदल चलना पड़ता है, लाइफ बहुत कठिन होता है। लेकिन वो होता है ना, आपका बोलते हैं कि पूर्व जन्मी का कुछ भी होता। मैं इन्फेंट्री ज्वाइन किया और मेरा कमीशन हो गया रेजिमेंट के अंदर, और मेरा पहला पोस्टिंग हो गया नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट पूरा काउंटर इंसर्जेंसी एरिया। दैट वाज अ डिफिकल्ट एरिया और बहुत एक्टिव एरिया था। वहाँ उस समय वो मिजोस हिल्स का चल रहा था, आतंकवाद। लोगों ने बोल दिया कि हमको स्टेटहुड चाहिए, और तो लोगों ने बोला भाई तुम अभी जिंदगी का टैक्टिस सीखोगे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जाकर। मतलब आप कमीशन हुए थे सर कौन से यूनिट में मिजोरम में जब गए थे?
1966 11 बिहार में सॉरी 9 बिहार। अच्छा 9 बिहार। हाँ, ओके। तो उस समय उनकी कैजुअलिटी भी हुई थी काफी आतंकवादी से। तो लेकिन जाने के बाद मुझे लगा कि वहां के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बट हिंदुस्तान के अंदर अगर मुझे बताया था तो उसको मैं नंबर 1 स्टेट बोलता। इतना उनका अच्छा बर्ताव, इतना आदरातिथ्य, हॉस्पिटैलिटी। अगर किसी के घर में जाओ तो लड़कियां आकर के आपको पानी देंगी, बिस्तरा लगा देंगी, सब संभाल लेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे। मतलब आतंकवाद का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जो कुछ आदमी थे वो चाहते थे कि हमारे स्टेट का तरक्की नहीं हो रहा है, हमारे स्टेट में सरकार कोई न्याय नहीं दे रहा है, तो उन लोगों ने ठहराया था कि हमारे स्टेट को स्टेटहुड मिलना चाहिए, अलग होना चाहिए, तभी हम लोगों का तरक्की। वो करते थे, तो बोलते थे आखिर के, हाँ बोलते हाँ गए थे, क्या किया, बोला हाँ हाँ किया। अभी उनके पास था क्या, सबसे गरीब थे, लेकिन उनका कल्चर हाईएस्ट इन द कंट्री। कल्चरल जो था उनका लेवल, सारे बच्चे और सॉरी स्टूडेंट्स वगैरह इकट्ठा रहते थे रात को, इतवार के दिन कोई अनशन घटना नहीं है, सब अपना गिटार लेकर के, उनको हिंदी गाने का शौक था, करते थे। उनको चाइनीज का मेकअप का किट था, पॉप करते आधा घंट, हाँ हाँ, सब चाइना से उनको आता था सामान। ध्यान रखिए, चाइना से सामान आता था सस्ते में, हिंदुस्तान का कोई सामान नहीं था। यहाँ की हमको 60 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। वहाँ का एक मुझे पता है, भाई 4 दिन चलता रहा, सवेरे से शाम तक, तो वही जगह पूछा। कोई मैप हमारे पास 1945 का, जब 1945 जब जापानीज आए थे कोहिमा के पास, उस समय के मैप जो ब्रिटिशर ने बनाए थे वही मैप था। तो उसमें क्या एक टीम लेके एक देहात दिखा देंगे, विलेज दिखा देंगे, वो विलेज था नहीं, क्योंकि जैसे उनका वो पेड़ काट काट कर खेती बनाते, एक जगह खत्म हो गया दूसरी जगह चले जाते थे। तो वहां के जो विलेजेस थे ही नहीं, सिर्फ वो ट्रैक के तरह था। लेकिन ट्रैक क्या है, पैदल चलने वाला ट्रैक, बाकी कोई दूसरा ट्रैक नहीं। उन लोगों ने कभी रास्ता नहीं देखा था, कोई हवाई जहाज नहीं देखा था, ट्रेन नहीं देखा था। नमक 60 रुपया केजी था। नमक 60 रुपया केजी तब जबकि लाए कहां से, जबकि मुर्गा 1 रुपए में 1 मिलता था। अच्छा। अंडा 1 रुपए में 12। अच्छा। हम लोग कभी कभी खरीदते थे कि कभी खाने, क्योंकि हम लोगों का भी राशन नहीं था, हम लोग पीठ पे लेके आए थे। हमको बोला था एयर ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन एयर ड्रॉप के लिए बहुत तकलीफ, क्योंकि हवाई जहाज आएगा, डाइव करेगा, ड्रॉप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, नहीं कर सकता था कि सारे पेड़ थे। फिर हमको 1 महीना लगा आजू बाजू के पेड़ काटने में। तब तक हम जब जाते थे इसका ये करने के लिए, मुझे इतना डिफिकल्टी, साथ में पेट्रोलिंग भी करना है, आतंकवादी के भी साथ करना चाहिए, गांव के साथ भी अच्छा मिलाप करना चाहिए। लेकिन हमने एक चीज वहां सीखा जो बाद में काम में आया, चाहे बांग्लादेश वॉर या कश्मीर के अंदर भी, कि वहां का जो पब्लिक है उससे अच्छा रिश्ता। वी आर नॉट पार्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आर्मी, वी आर द आर्मी फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। हम लोगों के लिए है, क्योंकि लोग हमारे हैं। तो ये जब भावना होती, तब आपको काफी सक्सेस मिल जाता है। एक स्पिरिचुअल चीज भी है। लोग क्या बोलते हैं कि काउंट ऑफ गन्स एंड बैरल्स मैन, मतलब कितने मारे, कितने हथियार पकड़े, वो अलग बात है। अगर कोई आपने सामने आ जाता है हथियार लेके, ठोक दो उसको। लेकिन हथियार नहीं है तो जैसे लोग बोलते ना कि बुला करके उसको मार कूट के इंफॉर्मेशन निकालो, ये चीज मैंने कभी नहीं की। इस वजह से लोगों का जो रिस्पेक्ट था हमारे, फिर उनसे कभी ऐसे जबरदस्ती करके कोई भी खाना या कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं चाहे। जो उन्होंने अपने इससे दिया कि हमको जरूरत ही कहाँ रहना है, तो अपना घर खाली करते कि साहब यहाँ के रहिए। लेकिन हमने नहीं रहते थे, क्योंकि आतंकवादी के इलाके में ऐसे नहीं रहना है। और मैं आश्चर्य की बात बताऊं, जब बांग्लादेश के लिए गया था तो हमारे लोगों ने हमको घर नहीं दिया। जब हमने बोला भाई हमारे मैंग्रोव है सारा, मैं बे ऑफ बंगाल के पास गया था, तो मैंग्रोव में रह गया टेंट लगा करके। इतने मोटे मोटे पिक्चर थे, क्योंकि बाजू में जो था हेडक्वार्टर्स सरकारी ऑफिस, तो उन्होंने अपना कमरा नहीं दिया मुझे। बोले नहीं साहब,
हमने जबरदस्त ना, हाँ ताला लगाया था। तो हमारे जवान हम लोग, लेकिन हमें जबरदस्ती नहीं, हमने बोला था ना कि किसी भी सिविल पॉपुलेशन के अपने तरफ से तकलीफ। तो तब मैं से बता रहा हूँ आप अभी, कैप्टन बन गए थे? मैं बांग्लादेश में जब गया था, यहाँ 2 साल काटने के बाद मैं कैप्टन बन गया था कि अच्छा। 3 साल के बाद फील्ड में ही थे। और उस समय मेरा फिर पोस्टिंग दूसरे बटालियन में हो गया। अच्छा 2-3 साल में रहकर के, क्या वो नया बटालियन खड़ा किया था उस समय, शायद वॉर की वजह से पता नहीं, और वो खड़ा किया उन्होंने दानापुर में। अच्छा। और उस समय, हाँ उस समय आ गया फ्लड्स। तो क्या है, बटालियन खड़ा करने के कौन सा बाद था सर? उस समय 11 बिहार, 11 बिहार। अच्छा अच्छा। 9 बिहार से मेरा पोस्टिंग आ गया 11 बिहार में। अच्छा। हमको बहुत दुख लगा कि जिस बटालियन में 2-3 साल काटा है, अभी नया बटालियन में जाना है, और वो भी पता नहीं कैसे जवान क्या सब होता है ना कि नए जगह पे जाना है। फिर भी हम गए और पता चला कि वहां बहुत ही बिहार के अंदर फ्लड्स आए हैं, हम्म। बाढ़ आई है। तो हमें 6 महीना मिलता है बटालियन खड़ा करने के लिए, मतलब हथियार भी सबको होना चाहिए ना, नए आदमी आए हैं सारे जगह से, तो उनको इकट्ठा करना, ट्रेनिंग करना, ये करना, कोशिश मुश्किल से 1-2 महीना मिला। 3 महीने बाद, तब तक ये बांग्लादेश का चल ही रहा था मार्च की वजह से, इतना हमें नहीं मिला था, लेकिन वो तैयारी चल रहा था, कुछ ना कुछ होना है, ये होना चाहिए। फिर सितंबर अक्टूबर के, मुझे तारीख याद नहीं, हमको बोला कि हमारा रेजिंग कंप्लीट नहीं था, अच्छा। आधा ही था। हाँ हाँ नहीं रही था, फिर भी उठा, क्योंकि लड़ाई था, लड़ाई में सभी चीजें अच्छा। देयर आर नो डिस्टिंग, वंस यू हैव टू गो यू हैव टू मूव। हम लोग चले गए। फिर हमें पास वही वो जो कि बे ऑफ बंगाल में जाना है, मैप के अंदर कुछ नहीं है, और फिर ऐसे होता है वहां की वो यंग ऑफिसर को दे देते हैं। तो आप हमारे पास एक बंगाल में कंपनी सर है आए थे, मतलब तब बिहार से? बिनागुड़ी, हम लोग उस समय बिनागुड़ी में थे। अच्छा। हाँ हाँ, तो बिनागुड़ी से, सॉरी करेक्शन, दानापुर में थे। दानापुर से आगे सीधा बंगाल के अंदर आ गए। अच्छा अच्छा। बंगाल के अंदर आने के बाद वो अभी सारा जगह मुझे शमशेर जंग ये आता है, एक इच्छामती रिवर याद आता है, और बे ऑफ बंगाल के पास मुझे बताया कि वहां किनारे जाना है, क्योंकि वहां से पाकिस्तानी आतंकवादी आ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जब ईस्ट बंगाल को घेरने की हमारी कोशिश हो रही थी, तब क्या किया था ब्रिटिशर्स ने 1945 में, उन्होंने एक फौज निर्माण किया था, ये सुंदरबन फ्लोटिला। अच्छा। सुंदरबन फ्लोटिला उसका नाम था, मतलब 1-2-4 अपने फौज के जहाज, नेवी के जहाज, एक ऐसे फोर्स कंपोजिट बना करके सुंदरबन के साथ उनको रखा था, ताकि कोई भी अगर आएगा वहां से तो उसका हम प्रतिकार कर सके। तो वो आइडिया हमारे सीनियर ऑफिसर के इसमें था, उन्होंने सुंदरबन फ्लोटिला की तरफ हमारा निर्माण किया, लेकिन हमारे पास इतने जहाज नहीं थे, इतना सामर्थ्य नहीं था इसका। सुंदरबन फ्लोटिला सर उस टाइम पाकिस्तान के पास था? नहीं 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 नहीं, अच्छा। सुंदरबन फ्लोटिला जो है 1945 में ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था। इसके लिए जो भी बे ऑफ बंगाल से आएंगे उनका प्रतिकार करने के लिए। अच्छा। समझ में ना, अभी हमारा था ईस्ट बंगाल के अंदर, तर उनको ये था कि अगर कोई ईस्ट बंगाल में कल मदद करने के लिए आएगा बाहरी देश का फौज, तो वो कहां से आ सकता है? बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल से आ सकता है। और बाद में आपने सुना भी होगा US 7 फ्लीट हाँ हाँ हाँ, तरफ से आ रहा था, सरल था। राइट राइट। तो इनडायरेक्टली ये सोच विचार करके, क्योंकि क्या होता है लड़ाई में, जो पिछली लड़ाई होती है उसका लोग अभ्यास करते हैं कि पिछली लड़ाई में किस तरह से वातावरण था, कैसे फौज का डिप्लॉयमेंट किया था, क्या क्या चीज को ध्यान में रखा था, ये हमेशा पढ़ाई किया जाता है। अच्छा। हाँ, एक्चुअली उसी के अनुसार नहीं करते, लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड सोच विचार करने के लिए आपको मजबूर करता है राइट राइट। कि अगर आपने प्रोटेक्शन करना है तो देखो, भी हमारा होने की वजह से वो उतना US 7 फ्लीट को भी पता चल गया होगा, वैसे आमने सामने आया नहीं है। अच्छा अच्छा। US 7 फ्लीट आमने सामने नहीं आया, वो दूरी था, क्योंकि उसमें रशिया के साथ हमने ट्रीटी कर दी थी। हाँ हाँ हाँ।
रशिया के सामने टीटी कर दी थी। तो उनको ये भी था, अभी रशियन आए हैं नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन बाद में जब ये अपने आईएनएस खुखरी को डुबा दिया, अब बाद में जब लड़ाई खत्म हो गई, तब हमारा जो एक ऑफिसर मुझे मिला खुखरी के ऊपर का, तो उसने बता दिया, हमने अपने रडार पे एक देखा था ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, अच्छा, बहुत ही बड़े नेवल फौज का। उससे अंदाजा लगा दिया कि इतना बड़ा नेवी का फौज सिर्फ अमेरिका का ही हो सकता है। अच्छा, अच्छा, मान लीजिए उससे ये बताया गया कि अमेरिका का 7th फ्लीट आया है। ओके, एक्चुअल किसी जहाज नजदीक नहीं आया था। राइट, राइट, हाँ, तो उसी के बाद हमारा भी प्लानिंग था कि हमको भी दे दिया यहाँ चल के। यूएस 7 फ्लीट तो ऑलमोस्ट जंग के एंड में आया था, तो आप तो सर सितंबर या अक्टूबर से डिप्लॉयड थे, तो तब कुछ Correct. एक्सपीरियंसेस के बारे में आप बता सकते हैं सर? हाँ, हाँ। जब गए थे तो ये मुक्ति बहिनी के जो है लोग हमसे आके मिले। अच्छा, अभी उनको खाना पीना, तो मुझे एसआरपी सप्लाई रिप्लेनिशिंग पॉइंट इंचार्ज कर दिया और बता दिया कि आप मुक्ति बहिनी को खाना दे दो। अच्छा, तो जब आते थे हमको 4000 5000 ऑर्डर किसका? ऑर्डर कुछ नहीं, हमको सिर्फ बताया सीओ ने, हाँ भाई दे देना। लिखित ऑर्डर कोई नहीं, अच्छा, लिखित ऑर्डर कोई नहीं, सिर्फ मुंह जुबानी। हम्म, क्योंकि लड़ाई के अंदर एक सिस्टम होता है, वॉर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। राइट, राइट, जब कोई भी आप ऐसे वाउचर बनाते हैं उसके ऊपर लिखते हैं लाल शाही से वॉर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। अभी लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि वो एक हमने मेजर वॉर उस समय खेला होता, तो हम लिखते थे वॉर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग लाल शाही से कागज में बना दिया। हाँ भाई, ये मुक्ति भवन फलाना फलाना जगह से आया है, 2000 राशन, बस उसका सिग्नेचर। वो कौन है पता नहीं, उसका आइडेंटिटी कार्ड पता नहीं, अच्छा, खुशबू 2000 है ये भी पता नहीं, अच्छा, कितने दिन के। मतलब बाद में ये लोगों ने ऑब्जेक्शन में डाल दिया कि आपने कैसे किया? हमने पैसे किया। लड़ाई में वो जो होते ना नीचे वाले जीसीओ वहां की जो सप्लाई के, साहब आपका स्टैंप होना चाहिए, बिना स्टैंप हम इश्यू नहीं कर सकते। अच्छा, तो हमारे पास स्टैंप का, हम लोग राइफल एम्युनिशन सामान। हम्म, तो जब मैंने स्टैंप मंगाया तो हमारे एक दूसरे क्वार्टर मास्टर साहब थे, वो बहुत गुस्सा हो गए, बोले साहब लड़ाई चल रहा है, अब स्टैंप मंगा रहे, स्टैंप कहां से आएगा? डैम द राइटिंग माइंड योर फाइटिंग, ये कहावत है, डैम द राइटिंग माइंड योर फाइटिंग, राइटिंग के लिए कोई। तो उसने जाके बाजार में जाके अपने पैसे से स्टैंप बना दिया हमारे नाम का। अच्छा, तो जब मैं साइन करता था हाँ, कि 2080 चाहिए, मेरे पीछे अपने कॉपी के ऊपर वो स्टैंप लगाता था। अच्छा, जस्ट सी व्हाट हैपेंस। ताकि वो साहब मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा कल। लड़ाई अभी ठीक है, लड़ाई की बात क्या होता है, जब तक हिसाब किताब का चलता है तब कोई दहने बाई नहीं किया है, इसलिए इंक्वायरी होता है। ये हमको पता नहीं था, मेरा सर्विस 3 साल का था। हम लोग को सिर्फ आगे बढ़ना चाहते थे, सिर्फ हमारा हम आगे बढ़ना, मुक्ति बहिनों को मदद करना। और अच्छा भी हो, जो मदद किया था काफी सारी जो है बहुत खुश थे। हमारा जब फौज जा रहा था सुंदरबन की तरफ, तो हमारे को मिला था 1 गाड़ी 2 गाड़ी मिला था, उसमें सारा एम्युनिशन, राशन तो था नहीं ज्यादा। तो ये मुक्ति बहिनी के लोग आते थे, सामान उतरते थे नदी से पहले, फिर इतना छोटा छोटा डिंगी था, डिंगी, वो डिंगी के अंदर, हाँ डिंगी चप्पू लगा डिंगी में डालते थे, नदी के दूसरे किनारे पहुंचते थे। अच्छा, वहां बोलते यार दूसरा रिक्शा, हाँ दूसरा रिक्शा लेके आओ, अच्छा, अच्छा, वही रिक्शा लेके आते थे। अच्छा, अच्छा, हमारे पास तो कहाँ पैसा था, हम्म, हम कहा वो फिर रिक्शा में डालेंगे, दूसरे नदी के किनारे तक जाएंगे, हम्म, वहां से दूसरा गाड़ी हमको ले जाएगा। हम्म, गाड़ी हम कहीं से भी मंगा लेते थे, वही उसको बुला देंगे, इधर आ जाओ, वॉर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग साइन कर दिया, दे दिया। तो इस तरह से मुक्ति भाई ने हमारा एम्युनिशन लोड करना, क्योंकि हमको इतना अंदाजा नहीं था ना कि डिंगी के अंदर अगर सामान रखना है वो उलट जाएगा, चलाना उनको ही पता है जो उनको चलाने पता वाला है, है, क्योंकि वो लोग तो पानी में पले हुए हैं। पानी में पड़े हुए हैं, सब पता है।
मतलब लोग बोलते मदद, वो लड़ाई का मदद छोड़ो, ये मदद कितना ज्यादा हो गया। हाँ हाँ मतलब एक जगह से दूसरी जगह के 70-80 आदमी का राशन, एम्युनेशन, गाड़ी, और कौन थे आदमी ये? मुक्ति बहिनी मतलब कोई लिस्ट नहीं है, 10, 12, 13 साल के जवान बच्चा लोग आता था, इतना इतना बच्चा एक एक बक्स उठा के रख देता था, बहुत खुशी से। मतलब बच्चे लोग थे, बड़े लोग मैंने बहुत कम जो थे, थोड़े कॉलेज के स्टूडेंट सिगरेट पी के अपने आप को ऑफिसर समझते थे, अच्छा अच्छा वहां भी सिगरेट पी आकर के फिर पूछते कैसे करना है क्या, वो बहुत उनको सभी जो मुक्ति बहिनी था उनके अंदर इतना उत्साह था कि जो सपोर्ट हमको हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिल सकेगा उतना उन्होंने बांग्लादेशियों ने दे दिया। सबसे प्रमुख कारण अगर है हिंदुस्तानी फौज सक्सीड होने का, एक तो उनका बर्ताव और ट्रेनिंग है ही, हमारा बर्ताव, स्टेट फॉरवर्डनेस, मदद करना, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, लेकिन दूसरा जो है वो मुक्ति बहिनी का। तो बाकी लड़ाई तो कर लेंगे हम पाकिस्तानी से, उसके लिए नहीं चाहिए, लेकिन ये बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मदद कितना, फिर बंकर बनाने के लिए इतना इतना बड़ा, उस समय मैं पहला इतना बड़ा खजूर का पेड़ देखा। अच्छा अच्छा हमें खजूर का गुड़ कभी कभी लाके देते, पहले दफा हमने खजूर का गुड़ खाया। तो खजूर के हम लोग अपने मर्जी से पेड़ नहीं काटेंगे, वही जो काटेंगे ला सामान लगा करके दे देंगे, फिर कहीं जाएंगे तो एक आधा कमरा ऐसे दे देंगे। तो इस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मदद बहुत था। जब हमला किया था हमने सातखीरा में, तो पाकिस्तान का क्या हुआ था, मोरल बहुत डाउन हुआ था, क्योंकि उसके पास सब था। अच्छा सर, ये हमला आपने कब किया था सातखीरा में? सातखीरा ये देखो 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुआ था ना, 3 दिसंबर को, तो 3 दिसंबर के सब समाज उस समय ही किया था हमने ये हमला, जब किया था इससे पहले हरकत हुआ था। लेकिन उनका इतना ये मोरल डाउन था कि उन्होंने छोड़ करके सामान म्यान छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा ये था एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, मतलब रहने का स्टाइल इतना अच्छा था, वो ज्यादा तकलीफ नहीं उठाना चाहते थे। और उठाने के बाद सबसे जब हमारा चलता गया तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फील्ड मार्शल मानेकशॉ का ऑन द एयर बयान देना पाकिस्तानी फौजों को सरेंडर करने के लिए। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लड़ाई का था, जिससे सारे पाकिस्तानी फौज प्रभावित हुए थे, क्योंकि वहां के अधिकारियों को फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बारे में पता था। शुरू में जब पार्टीशन हुआ था, ये सारे आयुब खान वगैरह से भी इकट्ठा थे, फील्ड मार्शल मानेकशॉ भी इकट्ठा थे, वहां के कुछ ऑफिसर बिल्कुल पुराने थे, जो उतना प्रमोशन नहीं हुआ तो वो साथ में थे। तो मानेकशॉ का जो कैरेक्टर था उनको पता था कि वो आदमी जो बोलेगा वो झूठ नहीं बोलेगा, ये एक फैक्टर था। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये मुक्ति भाई ने सारा सामान दे दिया, गाड़ी में चढ़ा दिया, लगा दिया, जिसका हमें बहुत मदद मिल गया। और क्या था कि जैसे हम रह रहे हैं मैंग्रोव के अंदर, अभी मैंग्रोव आपने देखा हो समुद्र किनारा, उसके साथ साथ जो मैंग्रोव होता है अभी, तो हमको कभी वही 2-4 दिन में बोलता साहब चलो हम देखने के लिए जाएंगे, अगर पाकिस्तानी पैट्रोल्स आए क्या। तो जाते समय देखता था कि साहब यहाँ बंगाल टाइगर्स भी है। अच्छा। तो बंगाल टाइगर्स नहीं आने के लिए वो क्या करता था, पेड़ के ऊपर चढ़ करके एक किस्म का बंदर जैसे आवाज करता था, किच 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 किच। अच्छा। तो वो आवाज का मतलब बंदर सभी हिरणों को बता देता था कि अभी यहाँ टाइगर आने वाला है, बंदर। अच्छा। तो हिरण नहीं आती थी, तो ये आवाज शेरों को भी पता चल जाता था। अच्छा। तो ये आवाज से जहाँ शेर नहीं आते थे उनको पता चल गया कि अभी हिरण यहाँ नहीं आने वाले हैं। अच्छा। और इतने इतने बड़े क्रैब्स ऐसे वहां दिखाने के लिए। लेकिन फिर वो मैं एक थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट होकर बता रहा हूँ कि ये मुक्ति भाई का जो क्या हमारा संपर्क बढ़ा था ना, इसकी वजह से क्या ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग भी किस्से थे। आप बोलिए। हाँ, तो ऐसे मतलब क्या होता, लड़ाई मतलब सिर्फ हमेशा है, मैं बताता हूँ, बंदूक लेना, गोली मारना एक बात हो गया, लेकिन बंदूक लेने से पहले वहां तक पहुंच जाना या गोली मारने से पहले दुश्मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कि अपने दुश्मन के बारे में देखा कि
दुश्मन जो है हतबल हुआ था। जैसे मैंने बोला, सेकंड लेफ्टिनेंट के कमरे में गया, वहां चेकोस्लोवेकियन मिरर था, अच्छा अच्छा फ्रेंच कंडेंस मिल्क, अच्छा राशन के ब्यूटीफुल पैकेट जो आज आपको मिलते हैं ना, आपको राशन के पैकेट्स, मसाला पैकेट्स वगैरह मिलते हैं, एक पूरी डाल दो पूरा खाना तैयार हो जाएगा। अच्छा ऐसे वाले उनके पास पैकेट थे। हमारे पास वो टिक 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 राशन में वो उतना होता ना, बना करके मसाला कूट कूट करके बनाना, ये था प्रिमिटिव मेथड। तो इनके पास ये अच्छा था कि पाकिस्तान आर्मी जो थी, आर्मी कंट्रोल कर रही थी पाकिस्तान को, तो उनका अच्छा। तो जब उनको ये मिलना बंद हो गया तो उनका मतलब धैर्य खत्म हो चुका था, और उसके साथ बाकी हमारा जोश बढ़ा हुआ था, तो ज्यादा रेजिस्टेंस उसके नहीं किया। फिर हमने चिटगांव से 1000 कैदी पकड़े थे, चिटगांव से। चिटगांव सर, तब आप तो हाँ, सर सातखीरा में थे, राइट? आप सातखीरा में थे। सातखीरा में हमारा आधा फौज गया, हाँ और वहां से वो लेके आया। मैं बे ऑफ बंगाल में की तरफ चला गया। एक कॉक्स बाजार में तो आपका बटालियन एक एम्फीबियस लैंडिंग, कॉक्स बाजार, यस यू आर राइट। हाँ हाँ, वहां पे आपका बटालियन का एक कंपनी उतरा था तो सर एम्फीबियस लैंडिंग में क्या हो गया? वहां पे आपके 11 बिहार का एक कंपनी उतरा था वो एम्फीबियस Yes. लैंडिंग में, Yes. कॉक्स बाजार में। यस तो वो आप- था, एक चार्ली कंपनी था। चार्ली कंपनी, चार्ली कंपनी, हाँ चार्ली कंपनी था, और एक ब्रावो कंपनी था। अच्छा अच्छा, ठीक है, दो कंपनी, क्या अच्छा बलवा? अच्छा। तो हाँ, आप दो कंपनी सर था। सातखीरा में थे, लेकिन ये दो कंपनी कॉक्स बाजार पहुंच एक गया बे था। ऑफ ने मुझे बे ऑफ बंगाल की तरफ भैया भेजा गया अच्छा सातखीरा के बाद, और ये कंपनी चली गई कॉक्स बाजार में, अच्छा, आप उनके साथ बात थे हो या उनके साथ नहीं थे? क्योंकि ये अलग था। दो टास्क थे ना, हाँ हाँ एक टास्क था एम्फीबियस ऑपरेशन, दूसरा टास्क था पाकिस्तानी कमांडोज में ड्रॉप इन। पाकिस्तानी कमांडोज कहाँ? सुंदरबन में, एंड दे विल ट्राई टू हेल्प आउट द सिख। तो ये दूसरा टास्क था हमको दिया, अच्छा 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 इसलिए उधर गए थे। अच्छा, तो आप सर तो सुंदरबन उन्होंने- में थे? सुंदरबन में थे मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो जब ये आ गए 1000 कैदी, तो मुझे फिर बुला गया था कि इन कैदियों को लेकर के आप प्रिजनर्स कैंप में अंदर पहुंचा दें। अच्छा, ये Business कैदी camp के कहाँ अंदर। से आए थे? ये एम्फीबियस ऑपरेशन, दैट वाज द ओनली एम्फीबियस ऑपरेशन इन बांग्लादेश। अच्छा अच्छा बांग्लादेश के अंदर एक ही एम्फीबियस ऑपरेशन किया था, वो है एलन बिहार और बाकी फोर्स के साथ वो किया था, और करने के बाद फिर वो जितने सरेंडर हुए थे उनको हमने लेके आए थे 1000। लेकिन ये सर वो विश्व चिटागोंग के साइड में, ये हाँ? ये जो 1000 कैदी है ये चिटागोंग साइड में था। कॉक्स बाजार कॉक्स बाजार- इसके अंदर, कॉक्स बाजार साइड में। हाँ यस वहां 1000 कैदी, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो इनको पहले 1000 कैदी था। अच्छा, तो इनको सर, और हाँ हाँ, बोलिए, तो इनको वहां से कहाँ लाया गया था सर? कलकत्ता में, कैलकाटा में, अच्छा, कलकत्ता में ला गया। ओके ओके। हाँ, कलकत्ता में लाया गया चिटगांव से। उस शिप का नाम था ऑपरेशन, मतलब विश्व विजय उसका नाम था, अच्छा 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 वो शिप का। हाँ हाँ, अच्छा और विश्व लाया था, और सब उनको मतलब ठीक ठाक उनका देखभाल किया था आने के बाद उनको। लेकिन उनको नहाने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं मिला था ज्यादा, क्योंकि हमारे पास राशन था जितना था वो दिया था। वो कलकत्ता में आकर के मुझे फिर बुलाया गया था ले जाने के लिए ट्रेन से, अच्छा अच्छा प्रिजनर ट्रेनिंग कैंप पर। यस, अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी हमको बताया कि देखो भाई, ये पाकिस्तान के कुछ बलूच रेजिमेंट या कुछ रेजिमेंट है, भी पता नहीं है, बहुत फियरी है, वो गुस्सा है, और प्रिजनर ऑफ वॉर का एक फर्ज बनता है, मतलब लिखित फर्ज है कि हमेशा उसने अपने आप को छुड़ाना चाहिए। दे मस्ट एस्केप फ्रॉम द कस्टडी। दिस इज द ट्रेनिंग गिवन टू इंडियन आर्मी एज वेल एज पाकिस्तान आर्मी। द ट्रेनिंग हो, ऑल प्रिजनर्स ऑफ वॉर आर गिवन ट्रेनिंग कि उन्होंने अपने आप को छोड़ करके अपने देश में वापस जाना चाहिए। ओके, ये ट्रेनिंग का प्रोसीजर होता है। तो जब लाए तो मैंने बोला भी इनको मैं कैसे डालूं इनको। फिर वो एक ट्रेन के अंदर मैंने ये ऐसे 10 कंपार्ट के अंदर डाल दिए, बाहर से कार्डबोर्ड मार दिया, और शुरू करने से पहले उन्होंने दरवाजा मारना शुरू कर दिया, अच्छा, क्योंकि इतना अंदर सांस के लिए जगह नहीं है। थर्ड रेट जैसे कोचेस, अंदर पानी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही ना, ट्रेन आया था, ट्रेन लगा दिया, भगा दिया।
तो मेरे वो सीनियर ऑफिसर थे, जनरल रेड्डी साहब थे, उस समय मेजर थे, बोले यार ऐसे मत करो, आपका मर 2IC जाएंगे। था सर, वो आपके बटालियन का वाईसी, यस यस, मेजर AR के रेड्डी। हम्म, तो उन्होंने आकर के उसको खोल दिया, मतलब खोलने के लिए बताया, मैं खोल के अलग अलग ला दिया। मेरे साथ एक दूसरा एक जनरल लेफ्टिनेंट था, कैप्टन घोष, कैप्टन घोष था, हाँ बंगाल का था, तो वो बंगाल जाता था, इसलिए उसको मेरे पास दे दिया। अच्छा, तो हम दोनों ने उसके साथ शुरू कर दिया। अभी स्टेशन में गाड़ी कोई नहीं खड़ा करने दे, हम्म, क्योंकि स्टेशन में गाड़ी खड़ने का स्टेशन मास्टर का प्रिविलेज होता है। तो उनको जैसे समझा कि ये पाकिस्तानी का कैदी है, वो सीधा सिग्नल देते थे ग्रीन, अच्छा, क्योंकि लोग वहां इकट्ठा रहते थे पत्थर मारने के लिए। गुस्सा ये था, लोगों ये के बात अंदर। नहीं पता। हाँ, लोगों को बहुत गुस्सा था। फिर मैंने बोला यार पानी नहीं है, हमको भी 60 आदमी थे, 1000 आदमी को कंट्रोल करना है। फिर ऐसे 2 स्टेशन होने के बाद मैंने जबरदस्ती बोला कि मैं स्टेशन गाड़ी आगे जाने नहीं दूंगा। आई एम नोन एज ओसी ट्रेन, ऑफिसर कमांडिंग ट्रेन 3 अच्छा, वो बोले साहब ऐसे मत करो, पीछे से गाड़ी, नहीं, जब तक पानी नहीं मिलेगा, पानी गाड़ी के अंदर नहीं भरा जाएगा, गाड़ी आगे मूव नहीं करेगी। तो उन्होंने मुझे स्लाइडिंग एक दे दिया, साहब ठीक है इस तरफ गाड़ी खड़ा कीजिए, वहां पानी। तो एक तरफ वो गाड़ी खड़ा कर दिया, वहां उनका रेलवे का होता है पानी का स्टैंप, आपने देखा बड़ा। मैंने फिर सोचा कि अभी मैंने खाना देना है इनको, कि वो खाया नहीं था खाना, और जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार आपने प्रिजनर्स का वो भी खाना पीना देना है, उनका रिस्पेक्ट करना है ठीक तरह से, मतलब ये वो भी सोल्जर्स है, दे आर सरेंडर्ड ऑल बट दे आर सोल्जर्स। हम थोड़ा सा चिंतित थे। फिर मैं ऑफिसर के कंपार्टमेंट खोला, 30 ऑफिसर्स। उन्होंने कहा देखो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी जो है आप ले लेना चाहिए। मेरे साथ लाइट मशीन गन मैंने लगा के रखी है, अगर कोई होगा गड़बड़ तो ये मारे जाएंगे। बोला ठीक है हम करते थे। फिर वो उतरे, हर एक कंपार्टमेंट के पास गए 2-3, वहां जो एक आधा इंचार्ज था उसको बुलाया, उनको ठीक बता दिया। फिर राशन, तो राशन जैसे मुझे बोला, मुझे मेरे को जाने से पहले एक दिया था कंटेनर, जो माल डब्बी गाड़ी का डब्बा था, उसमें राशन था, उसको सील किया था। उन्होंने बोला था कि आपने प्रिजन कैंप में पहुंचाना है। उसके अंदर का काफी सामान था, टी कॉफी मसाला सब था। अभी खोलना कैसे, क्योंकि सील किया हुआ था, मैंने सील, तो मैंने अपना रिस्क लेके उसको हथौड़ा मार के उसको तोड़ दिया। अच्छा, हाँ तोड़ जाएगी, रिस्क स्टेशन, गाड़ी खड़ा करना रिस्क था, प्रिजनर्स को खोलना रिस्क था, उसको तोड़ना रिस्क था। उनको बोला इतना पानी का अभी छोड़ा हुआ है, सब जिसको करना ना, वो उसके नीचे खड़ा होकर 1 मिनट के अंदर पूरा पानी से भीगते नहा के अच्छा, हो। हाँ सब किया। स्टेशन, राइट सर। वो बड़ा होता है ना, वो रेलवे का इंजन में डालने के लिए होता है पंप, पानी आपने देखा होगा, बड़ा सा पानी आता है, आप 1 मिनट में खड़ा होकर पूरा अब पानी आ जाएगा। तो खाना भी उनको बनाने के लिए बता दिया हमने LNG लगा दिया, उन्होंने बर्तन निकाले, खाना बना दिया। उतना का बड़ा अच्छा खाना बनाया, सारा सब मतलब दिल से खाना बनाया उन्होंने। कम से कम 1 घंटा लोग खाना खाते रहे, तो भूखे थे। अच्छा, उसमें से हमने भी खाना लिया। तब तक हमारे पास जो सेट था वो कोई बात नहीं करता था कि वो सेट खोलना मना था। तब तक वहां हल्ला कल्लोल मतलब मचा हुआ था कि गाड़ी खड़ी हुई है 2 घंटा, एक तरह से कहाँ गई क्या गई। उसके बाद हमने सब पूरा कर दिया, बंद करवा दिया ट्रेन को, बता दिया स्टेशन मास्टर को, जो मतलब जो था गार्ड को, गाड़ी शुरू कर दी। और फिर हम लोग उसके बाद जो था, मतलब देयर वाज अ पिन ऑफ साइलेंस, डब्बे के अंदर से कोई आवाज नहीं था, क्योंकि उन्होंने नहाया था, अच्छा खाना खाया था, वो सो गए थे सर। तो जाके मैंने बात दिया, तो उन्होंने पूछा कि व्हाई डिड यू हॉल्ट ट्रेन। आई सेड व्हाट है, बट व्हाट वर द ऑर्डर्स। ऐसे ऑर्डर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कोई रिटर्न ऑर्डर्स नहीं है, खाना देने का ऑर्डर नहीं दिया। कैसे वो वॉर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सो हमने लिख साइन करा था। जैसे मुक्ति बहिनी को दिया था वो भी आया बाद में, आपने राशन कैसे दिया। हमारे पास कागज जो थे वही एकदम कोई जाकिर फलाना फलाना असलाब 1000 मुक्ति बहिनी
राशन दिया हुआ बस, और मेरा सिग्नेचर जरूरी है कि मैं ऑफिसर हूँ, हाँ, हाँ, क्लार्क का कोई नहीं है, सप्लाई डिपो का कुछ नहीं है। तो ऐसे मैंने 30,000 लोगों का राशन दिया था, ये दिया था। लेकिन ये सब चीजें क्या हो गया कि अच्छे स्पिरिट के करने की वजह से वो सब मतलब उसका लोगों ने इसका एक्शन नहीं लिया। नहीं तो आप एक कैसे दिया, ऑर्डर क्या था। इस लड़ाई के अंदर ऑर्डर जो होता है मुंह जबान होता है। आप लिखित अगर मांगते रहोगे फिर आप लड़ाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए कहावत है, राइट, राइट। हाँ, डैम द राइटिंग माइंड योर फाइटिंग। वो फौज में और जगह भी ऐसे ही बोलते हैं कि जब भी कोई ऐसे ज्यादा लिखा पढ़ा कराता ना, तो लिखा पढ़ाई के लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्या सिचुएशन होगा आपको पता नहीं होगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे सेइंग ये है कि आप सोच सकते हैं कि दुश्मन 3 जगह से आ सकता है, लेकिन दुश्मन चौथा वाला अप्रोच ले लेगा। ये दुश्मन का टेंडेंसी और दूसरा, हाँ सेइंग है ये फौज में। दूसरा है कि एवरी प्लान इज इफेक्टिव टिल फर्स्ट बुलेट इज फायर्ड। एवरी प्लान इज इफेक्टिव टिल फर्स्ट बुलेट, मतलब पहला बुलेट फायर हो गया आपकी प्लान के वैसी देसी, मतलब क्या होगा किसी को पता नहीं। डोंट बी ऑलवेज थिंकिंग अहेड, अच्छा करना चाहिए, अच्छा। तो दिस वाज द एक्सपीरियंस ऑफ विथ माय मुफ्ती बहनी, with Pakistan prisoners and district, and then of course ये जो एक्सपीरियंस था मुझे बाद में काम, जैसे मैंने बोला आपको कश्मीर में आतंकवादी के साथ लड़ते समय भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस काम में आया, नागालैंड का, पाकिस्तान का। और वहां जाकर के मचर अचरज की बात है कि हमारी पहली बटालियन थी जिसका कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। मतलब ये अलग अभी टॉपिक है। अगर बटालियन था सर 11 बिहार, 11 बिहार कमांड कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी 11 बिहार आतंकवादी एरिया में आतंकवादी थे 12,000 फुट के ऊपर। अच्छा 12,000 फुट के ऊपर। हाँ हाँ, यस यस। बहुत जब क्या बोलते हैं इसको, हिमप्रपात, बर्फ वृष्टि और स्नोफॉल इतना था कि हम लोगों को जाने के लिए 60 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था बटन लोकेशन में। अच्छा, चल करके जब बर्फ में अटक जाती थी तभी आता। तो लोगों को कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, राशन नहीं क्या उनको पोस्टिंग मिलेगा। लेकिन हमने भी यही, जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे नागालैंड मिजोरम में भी हमने पब्लिक को अपना समझ के, कश्मीर में भी ऐसे हमने किया है, वही किया। कि ये एक्सपीरियंस मैंने बोला लड़ाई का कि क्या है आपका काम है, क्या है कि जो आतंकवादी है उनको मारना। मतलब कोई अगर आ गया बंदूक लेके बॉर्डर क्रॉस करके रोकना, या पाकिस्तानी ने कुछ गड़बड़ किया आपके बीच का जो पीरियड है, तो केवल आतंकवादी चाहिए, ये करनी चाहिए करके गांव में जाओ लोगों को मारो, ये ऐसे ही कार्रवाई हमने नहीं की। वैसे हमने इतना था कि गांव के अंदर हमने कभी अखरोट के पेड़ नहीं काटे, जब लोग पेड़ आके काटते थे फर्नीचर के लिए। कभी कोई, हम लोग शौकीन है मीट खाने के। वहां आपको अच्छा लगेगा, रेनबो ट्राउट था किशन गंगा रिवर में। रेनबो ट्राउट जो वहां 100 रुपीज केजी था, और जो जम्मू में हमने देखा कि रखा हुआ था 3000 रुपीज केजी ड्राई रेनबो ट्राउट। यू नो रेनबो ट्राउट होता है कि वो अलग अलग खाना होता है हर जगह उसका। यहाँ का जो खाना होता है होगा अलग दूसरी जगह। तो उसको अगर मारना है तो इसके अंदर बोलते कि जो क्या बोलते हैं अपना एंगलिंग वायर के अंदर उसी किस्म का आपको खाद्य लगाना पड़ता है। अच्छा। दूसरे रेनबो का नहीं, वही खाना। एनीवे, तो इतने अच्छे वो थे, लोगों को कभी बात है मैंने बोला नहीं, फौज का काम है शिकार नहीं करना। तो वहां लोगों ने मस्ट डियर, कस्तूरी हिरण, 18 कस्तूरी हिरण मारे थे। अच्छा। 18 कस्तूरी हिरण, हाँ वहां के एरिया में एक भी हिरण। तो हमने शिकार नहीं किया, पेड़ नहीं काटा, उनके साथ चला। और जब आतंकवादी के साथ हमारा मुठभेड़ हुआ था, 32 आतंकवादी हमने मारे थे जब आए थे। उसमें हमारा टोटल हमने 100 मारे थे। तो उसमें से मैं एक छोटा सा बच्चा था 11 साल का, 9 साल में 9वीं क्लास में पढ़ता था, उसको 3 गोलियां लगी थी पीछे। अच्छा। 3 गोलियां लगी थी, वो चल नहीं सक रहा था, और मतलब फिर भी वो जिंदा था, मतलब बोल सकता था। क्या होता है फिर वो बधिर हो जाता है।
ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने उसको थोड़ा चाय भी पिला दिया। फिर बोला हमने भाई ऐसे ऐसे पड़े हुए, बोला हाँ ठीक है, अगर है पड़े हुए तो मरने दो, आतंकवादी है। तो हमने बोला नहीं, अभी हमने उसको जिंदा हमारे हाथ में आया हुआ है, वो सरेंडर किया है। तो हमने पोर्टर डिटेल किए, 6 पोर्टर, उस समय 4,000 रुपया पेमेंट करके 93 में, वो दोनों को 8 किलोमीटर रास्ते से ले गए अपने इसमें। वहां हेलीकॉप्टर खड़ा था, अच्छा। तो हमने हेलीकॉप्टर में डाल दिया, उसको श्रीनगर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और वो बच गया। अभी कहाँ का था, क्या क्या था पता नहीं है, लेकिन जहाँ के वो लोग देखने वाले थे उनके ऊपर वो बहुत गहरा असर पड़ गया कि आतंकवादी अगर जख्मी हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको बेरहमी से नहीं मारा जाता है। अगर वो खुद बंदूक चला जा रहा है, खुद मतलब बात अलग है, लेकिन जिसने हथियार छोड़ दिया उसके साथ। तो इसलिए हम जब जाते थे तो हमारे साथ एक सूबेदार मेजर थे शंभू नारायण, तो उसका भी एक अपने किस्सा है कि जाने से पहले हमने बोला कि अभी सब ठीक ठाक हो गया, जाते समय हमारा कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम लोग जा रहे थे तो कहीं से भी आतंकवादी मार सकते, क्योंकि हमने 100 उनके मारे थे, वो भी मार सकते हैं। और अभी कश्मीर का सारा वो लोग ही ऐसे खिलाफ थे फौज के, क्या लोग कार्रवाई करते थे पता नहीं है। तो हमने मंदिर का पूजा करने के लिए सोचा, तो एक हम मंदिर में गए, उधर हमारे एरिया में छोटा सा मंदिर लगे, उसको पूजा कर दिया। 6 बजे में वापस आ गया। रात को 12 बजे एकदम हल्ला मच गया, पता चला कि वो मंदिर ही जल गया। जल गया? अच्छा। जल गया मतलब अभी पता लग गया कि भाई साहब ने, कर्नल साहब ने, मैं उसमें कर्नल था, जो मंदिर में पूजा किया वही जल गया। अभी हम जा रहे हैं दूसरे दिन, मान लीजिए, अब शुक्र हो गया। मैंने बोला ऐसे कुछ नहीं है, हमने अच्छा काम किया है, अभी अच्छा काम किया और लोगों ने जाना है। तो मैंने बोला कि मैं सबसे पीछे आऊंगा, हम सबसे आगे रहते हैं, तो आगे श्रीनगर पहुंचने से मैं पीछे रहूंगा, जब सबसे आखिरी गाड़ी पहुंचेगा श्रीनगर, मेरा गाड़ी पहुंच जाएगा। तो मैं सबसे आखिरी था, जाने से पहले मैं अपना जो सूबेदार मेजर होता है बटालियन का, एक जवानों का इंचार्ज सूबेदार मेजर शंभू प्रसाद, तो उसको लेकर के मैं गया और वहां के लोगों की बयात, वो लोग खड़े थे लेडीज दरवाजे में, तो उन्होंने हमारे ऊपर गुलाब के फूलों की पखड़ियां डाली, गुलाब के फूलों की। मतलब कश्मीर में इस तरह का अनुभव होना, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। जहां आप लोग बोलते, इतना कश्मीर के बारे में लोग बोलते, यहाँ बोलते, एक भी अभी कैजुअलिटी तब तक नहीं हुआ था हमारा। मुझे यही था कि कैजुअलिटी हो सकता है आखिर में हो या क्या हो, लेकिन उन्होंने बोला साहब आप होते हुए हमारे पेड़ों को धक्का नहीं लगा, क्योंकि हमने पेड़ नहीं काटे। तो वहां के जो फॉरेस्ट ऑफिसर था, वो सर्टिफिकेट देता है ना किसी भी बटालियन को, उसने 3 महीना पहले दे दिया सर्टिफिकेट कि हमारा कुछ नहीं है, और बोला जितना काटना है काट लो। आपने 2 साल में नहीं काटा है, ठीक है, मैं सर्टिफिकेट आपको 3 महीने पहले दे रहा हूं, आपको जो काटना है काट लो। मतलब देखिए, वो भी वॉलनट, अखरोट, वॉलनट ट्रीज, सारा जंगल हमारे हाथ में था। तो देखिए साहब, आपने कभी हमारे जानवरों को धक्का नहीं लगा, कि एक तो शिकार नहीं किया था, और दूसरा था अचरज की बात कि उनको हुक्म था कि वो सब अपने घर में 6 बजे वापस आएंगे। 6 बजे वापस आना है तो उनको अपने खेत से कितने बजे चलना था? 3 बजे। 3 घंटा चल कर ही पहुंच सकते। अगर 3 बजे चलेंगे तो उनको जो डे लाइट मिलता था 3 घंटा 6-7 बजे तक घास काटने का, वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा तो बर्फ जब पड़ता है तो सारे जानवर खड़े रहते हैं, उनको खाना खिलाना पड़ता है। मान कोई कहीं जा नहीं सकते, तो उनको खाना कहां से खिलाएंगे? जब तक आप स्टॉक नहीं करेंगे, और स्टॉक कब करेंगे? जब बर्फ नहीं गिर रहा है। कैसे करेंगे? 6 बजे तक काम। और हुक्म क्या था कि 6 बजे घर में होना चाहिए, घर में, ये हुक्म था ऊपर से। अच्छा हाँ, ऊपर से हुक्म किसने था? नहीं तो वो जाकर के पाकिस्तान से मिल जाएंगे रात में आएंगे तो, क्योंकि वहां कोई फेंसिंग नहीं होता है, एक पहाड़, उस तरफ उनके रिश्तेदार होते हैं, इनके इधर रिश्तेदार होते हैं, वहां कोई फेंसिंग नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई सेंटर कुछ नहीं होता पाकिस्तान। तो हमने बोला भाई देखो ये ऐसे हुक्म है,
अगर मैंने आपको परमिशन दिया तो मेरा हुक्म तोड़ने के मुताबिक है, लेकिन हुक्म किस लिए दिया है? आतंकवादी के साथ आपने मिलना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। आप वो मुझे गारंटी दे दो, अगर ऐसे कुछ हो गया तो मैं, हाँ वो सब हम सब करें और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आतंकवादी का। तो ये हमने हुक्म दे दिया था। तो उन्होंने बोला सब हमारे जानवरों को धक्का नहीं देगा, पेड़ों को नहीं लगा, औरतों की बात ही अलग है, हमारे लिए आप मसीहा हैं, हाँ, या जिसको उनको बोलते हैं अल्लाह या जो भी है उसको बोलते, आपके बटालियन को कुछ नहीं होगा, आपके बटालियन को कुछ नहीं। हम चले गए, रात को 9 बजे श्रीनगर में पहुंचे, हमारा कार्यकाल कश्मीर के अंदर खत्म। उससे पहले हमको बताया था, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया था हमको कि आपकी बटालियन रही, इतने आपने आतंकवाद की मारे, लेकिन कोई भी कैजुअलिटी आतंकवादी के हाथ से आपके बटालियन को नहीं हुई, जबकि आतंकवादी मारे थे। और जब पहुंच गया रात को 9 बजे, 10 बजे जब मैंने टेलीफोन किया था वहां के जो दूसरे बटालियन टिकोर, वहां से मैसेज आ गया कि एक ऑफिसर साहबान वहां घूम रहे थे, वहां उनको 4 गोली आतंकवादी ने मार दी पेट में और गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसी एरिया के अंदर जहां हमारे 300-400 जवान सोए थे, बाहर ऊपर में सोना कहाँ है? जाने से जगह छोड़ दिया तो आपको जगह कहाँ है? फिर ऊपर में सोना है। ऊपर में सोने के ऊपर गोलीबार नहीं हुआ उनके ऊपर, क्यों? दूसरे दिन हुआ था उनके। मतलब ये जो होता है, आपको बोला ना, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन होता है कि आप जब अपना काम करते हैं, फौजी काम, तो उस हालत में आपने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो बातें इतिहास है अपना, हिंदू नीति जो है, ये सिखाई भी जाती है, ये ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि किस तरह से अगर आप फॉलो करते हो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये तो आपका तजुर्बा कश्मीर। यस सर, इसके बाद आपने 16 बिहार को रेस किया। किसका? हाँ, ये 16 बिहार को हमने रेज किया। अभी उस समय ऐसा था कि आपने सुना होगा स्वर्ण मंदिर में कुछ हुआ था किस्सा। हाँ, स्वर्ण मंदिर में उन्होंने आतंकवादियों ने आकर के करवा दिया, फौज को बुलाना पड़ा कि ये करना पड़ा। वरना है नॉर्मल, ऐसे कोई मंदिर में रह करके कानून कोई हाथ में नहीं दे सकता। और जब ये काम है फिर पुलिस का, क्योंकि ये 2 चीज देश के अंदर होती है, उसको निपटाने के लिए पुलिस आती है। तो लेकिन उनके सोचा होगा उस समय कि भाई फौज का कार्रवाई हो गया, तो फौज हो गया, सक्सेस हो गया, लेकिन उससे उन लोगों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा, चोट पहुंची, ऐसे उन लोगों का मानना है। तो क्या हो गया कि उसमें से कुछ सीख तो नया बटालियन निर्माण करने के लिए उन्होंने सोचा उस समय के जनरल साहब ने कि हर एक बटालियन के अंदर, इन्फेंट्री बटालियन में, बाकी में है ही है, जैसे नेवी एयरफोर्स में सारे मिक्स है, इन्फेंट्री में कैसे आता है? कास्ट के ऊपर, जैसे मराठा है तो मराठा ही रहेंगे, सिख है सिख रहेंगे, दूसरा पंजाब है पंजाब ही रहेंगे। तो उन्होंने सोचा सभी को मिक्स करो, चारों सिख मिक्स आप। तो उन्होंने बिहार के अंदर सारा सिख, गढ़वाल, बिहार, आदिवासी मिक्स कर दिया। वो एक ही बटालियन था उस केस में, बाकी सारे 19 बटालियन कास्ट के ऊपर थे, एक ही बटालियन जो मिक्स। तो ऑर्डर देने के बाद हमारे रेजिमेंट को दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने फिर ऑर्डर इश्यू कर दिया, भाई ठीक है ऐसे बटालियन रेस करना है। लेकिन हुआ ऐसे कि रेस करने के लिए बताने के बाद जिन्होंने रिपोर्ट करना था उसमें से किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया। मैं 5 दिन पहले रिपोर्ट किया। और वो भी कैसे? उस समय मैं भी 11 बिहार में बाहर था। बाहर मतलब फैमिलीज आई थी कोल्हापुर में, मैं था एक्सरसाइज एरिया में ट्रेनिंग करने में। अच्छा। वहां मेरे को पोस्टिंग आ गया, तो मैं आश्चर्य हो गया कि मुझे कह रहे कैसे पोस्टिंग आया है, और मैं कैसे हूँ? मेरा सामान पड़ा हुआ है दाक्षाई में, टी स्टेशन में, मैं हूँ 3 घंटा बाहर कहीं, और अभी सामान को पैक कौन करेगा, ले कैसे जाएंगे? मतलब मैं बता रहा हूँ कि कैसे नहीं। और मेरी जो वाइफ थी वो थी कोल्हापुर में। अच्छा। तो वहां से वो चिट्ठी लिखती थी, ऐसे ऐसे सामान पैक करो। फिर वहां से मैं उनको बताता था, जो मेरे
सहायक थे, आप ऐसे ऐसे घर में सामान पैक करो, वो फिर खोल के वो पैक करते थे। राइट राइट। और मेरा उसमें कुत्ता भी था, 2-4 खरगोश भी थे, कुछ मुर्गियां पाली थी, शौक था ना। लेकिन वो एक जगह, मैं एक जगह और फैमिली एक जगह। आप सोच सकते हैं कि इस तरह से सामान पैक करके बोले ट्रक से भेजना है दानापुर, क्योंकि बटन बोले साहब ये सारा कुत्ता, खरगोश, मुर्गियां और सामान लेके बिहार में से सामान ले जाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप, हाँ आप आइए, अच्छा रहे। फिर मैं ट्रेन से नहीं गया, जब हमारे पास ट्रेन का, हवाई जहाज का टिकट रहता है, मैं उस ट्रक में बैठा। ट्रक में मेरे पीछे वो मेरा कुत्ता, मेरे 2 जवान, सामान, सब मुर्गियां, खरगोश भर के लिए। बिहार जैसे पहुंचे, वहां अंधेरा था। एक पुलिस स्टेशन में बोला साहब आगे मत जाइएगा, क्योंकि आज कल 10 ट्रक को लूट गया है, लूट दिया है, होता है ना वो। फिर मैं पुलिस स्टेशन में ठहरा, वहां लाइट ही नहीं था। फिर जाकर के उन्होंने अंधेरे में खाना बना दिया, मेरा बड़ा कुत्ता था, उसको खाना खिला दिया सबने। फिर दूसरे दिन सुबह चला गया, मैं पहुंच गया, अकेला ऑफिसर था मैं, अकेला ऑफिसर। फिर उन्होंने अरे नहीं है, फिर वहां के वो 2-3 अफसर इकट्ठा करके 4 दिन के बाद 16 बिहार की स्थापना हो गई। ओके। अलग बटालियन, यूनिक कॉम्पोजिशन, तब से फौज में अलग एक पहचान, एक अलग निर्णय। और हमने देखिए जो मैं पहला था, मैं तो मुझे वो, मैं उस सेकंड इन कमांड था, नंबर 2 पे। अच्छा। नंबर 1 पे था, नंबर 1 पे तो आए ही नहीं, बाकी लोग कोई आए ही नहीं है। उन्होंने अपना पोस्टिंग कैंसिल करने की कोशिश की। अच्छा। अपना पोस्टिंग क्या, हाँ, क्योंकि इसलिए नया बदलने के लिए इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, कौन पता नहीं रहता है क्या नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्टी होती है। तो जो यहाँ सेटल है वही सेटल होना चाहते हैं। अपना सेटल किया हुआ छोड़ करके दूसरे में जाकर के क्यों बस दिमाग को ले लेना, और वो भी अलग रेजिमेंट के जवान। तो फिर हालांकि उनको रेजिमेंट के जवानों को छांटना, सब करना, मेल मिलाप पैदा करना, ये करना। फिर आपके पास उतना रिसोर्सेस नहीं होता, रिसोर्स नहीं होता तो आप, मतलब इतना नहीं होता कि अगर मैं मान लीजिए कमांडिंग ऑफिसर हूं और ऑफिस में बैठा हूं, चाय मंगाता तो मेरे पास कप सॉसर नहीं था, कप सॉसर नहीं था। सोच लीजिए, मैं है वो कमांड, 800 आदमी है नीचे, लेकिन तो उसके लिए पैसे चाहिए। फिर उन्होंने दे दिया कि एक टेबल कुर्सी दे दिया हमारे जो सेंटर के। तो हमने बोला कि क्या न, क्यों नहीं अपने जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है उनके पास जाया जाए। तो हम बिहार के चीफ मिनिस्टर के पास चले गए, वैसे परमिशन नहीं है, आप नहीं जा सकते, आपने बताना पड़ता है अपने से ऊपर वाले को, ऊपर वाले को दिल्ली तक परमिशन जाएगा, परमिशन आएगा तब आप बुला सकते हैं। अच्छा। हम किस लिए गए, एक नया किस्म की बटालियन है, अलग अलग नए जवान आ रहे हैं, और इसलिए अगर वो शुभेच्छा देंगे अच्छा रहेगा। और असली मकसद था कि वो भी कुछ देख करके अपना अनुभव। तो मैं गया उनको निमंत्रण देने के लिए। तो पहले वो चीफ सेक्रेटरी था, तो उन्होंने बोला कि ये तो मेजर साहब है, उस समय मेजर था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ 1985 मेजर था ये कमांड करने। तो ठहरो इधर, तो ऐसे कोई मिलने नहीं देता, चीफ सेक्रेटरी को मिलना थोड़ी आता। तो मैंने सबको ये करके जा करके गया, सैल्यूट मार दिया। जैसे देखा उन्होंने ड्रेस में होंगे, उन्होंने, वो हमेशा रिस्पेक्टफुल होते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बिठा दिया। मैंने बोला इससे ऐसी बटालियन है, ये बिहार की अलग किस्म की बटालियन है। इतने साल 1947 से 1985 तक जो बटालियन हुई उससे ये अलग बटालियन है। हम चाहते हैं कि ऐसे बटालियन को आप आके आशीर्वाद दीजिए ताकि उस बटालियन का अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगा। देखा हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा। मेरा कितने तारीख को लगा, देख लिया आपने, पीए को बुला दिया, हाँ हाँ इतने तारीख को 10:30 बजे आ जाऊंगा, आप मुझे आज लेने के लिए। मतलब ठीक है, ऐसे बता दिया। मैं चाय पी रहा था, तो हमारे साथ तो इंटेलिजेंस हवालदार होता लिखने के लिए, तो गया 2 मिनट में उसने सिर्फ डाल दिया तारीख 13 अगस्त, इतना नाम सब लिखा हुआ था, आजू बाजू सब, आके उनका इन्विटेशन कार्ड दे दिया। अच्छा अच्छा। बोले अरे चाय खत्म भी गई यार हाथ में,
तुमने आजू बाजू को बोला, देखा भाई ये फौज का तरीका। मैं अभी उनको बोला 13 तारीख होगा, उनका इन्विटेशन कार्ड, मेरा नाम, प्रिंट आउट सब, जो सिर्फ हाथ से लिखा, बाकी सब प्रिंट आउट तैयार ही था। और सिर्फ उनको ही नहीं, उनके चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बाकी सबको एक ही साथ। वे बड़े खुश हो गए हो। आप सोच ले कि आप जाके किसी को पूछते, मैं देने के लिए आया, उनके गाड़ी में बैठ करके, वो चीफ मिनिस्टर की बड़ी मतलब आ गए, उन्हें सारे 800 जवानों को संबोधित किया। तब उनको उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया, साहब इसमें तो सारे बिहार के आदमी नहीं हैं, कुछ सिख के हैं, कुछ गढ़वाल के हैं, कुछ बिहार, कुछ देखो। हाँ, वो देखो, ये बगीचा सामने दिखा रहा है, बगीचे में हर किस्म के फूल रहते हैं, और हर किस्म के फूल इकट्ठा करके उस फूल को गुलदस्ता बनाया जाता है। इस तरह से सारे रेजिमेंट का एक ये गुलदस्ता है। मतलब इनडायरेक्टली ही रिप्रिमांडेड हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और वो भी पॉलिटिशियन। और जाते हुए मैं 1 लाख रुपया हमको दे दे भेंट, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया तब उस 1985 में। और वो भी उन्होंने चुपचाप बता दिया कि देखो मैं जा रहा हूं कल अपने प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को लेने के लिए, उससे पहले आप पैसा लाके ले जाना, नहीं तो बाद में वो कागजी कार्रवाई में लग जाता है, मिलता नहीं, बाद में पैसा दे लग जाता है। तो आपको अच्छा लगा। वो जाने के बाद दूसरे दिन वैसे हमको सबको खाने के लिए बुलाया था, मैं खाने के लिए नहीं गया, जीप लिया उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास रात को 12 बजे, और रात को 12 बजे जाके वो चेक लेके आया मैं 1 लाख रुपया का, चीफ इंजीनियर के ऑफिस से। तो हाँ, बिंदेश्वरी दुबे, हम इसको भूल नहीं सकते। और उस समय वो आशीर्वाद दिया था कि ये बटालियन बहुत अच्छा करेगा। और इसी बटालियन ने आगे जाके, आपने सुना होगा चीनी के 45 जो मारे चीनी के, और हमारे महावीर चक्र ये मिला। और सबसे पहली घटना थी भारतीय इतिहास के अंदर कि कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र मिला। हमारे सभी को 20 जवान थे, 20 को अवार्ड मिला, सबके उसको ये दे दिया, और एक रात में 20 अवार्ड मिला, ये भी ऐसी। तो हमको लगता है कि उस समय जो ये स्थापना की, हम लोग सोचते हैं जो चीफ मिनिस्टर में ये दे दिया, अपना योगदान दे दिया, अपना आशीर्वाद दे दिया, उसी के ऊपर चलते गए, और लोग ठीक है, बाकी लोगों का काम है ही। लेकिन आगे जाकर के फिर हमको बुलाया, यहाँ लायंस क्लब ने बुलाया था मुंबई, रोटरी क्लब मुंबई में बुलाया था। उन्होंने मुझे बुलाया कि साहब इनका दे दीजिए पता, हम उनको देना चाहते। उन्होंने टेलीफोन करके 30-30 हजार रुपए दे दिया। अच्छा। एक ट्राइबल न्यूज एजेंसी थी, अच्छा, ट्राइबल, उन्होंने अपने बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया इंदौर में, सारे 20 जवान को, फैमिलीज को बुला के उनका रहने का इंतजाम होटल में किया। हमको बुलाया, उनको एक दिन रह करके उनको जो है सम्मान किया। क्योंकि आप फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर थे बटालियन का। नहीं, मैं कमांडिंग ऑफिसर नहीं था, मैं रिटायर्ड था। नहीं, मतलब पहले थे, उसका तो जब बटालियन रेस बुलाया, क्योंकि ये जो स्थापना की थी ना, स्थापना में हमारा नाम पहला है। केवल हमने इसकी स्थापना की थी, इसी में जाकर कमांडिंग ऑफिसर थे, उनको बुलाया कमांडिंग ऑफिसर। उसके बाद हो गए 5-6 कमांडिंग ऑफिसर। मैं रिटायर हो गया 2005 में, अभी 2024 चल रहा है, मैं रिटायर हुआ 2005 में। और ये फंक्शन हो गए 2-3 साल पहले, 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये चाइनीज के साथ होने के बाद। तो उन्होंने जो इतिहास बना करके लोगों को पूछ करके, वो बाकी सबको बुलाया था, लेकिन जो स्थापना की थी उनको भी ऐसे बुलाया। तो कहने का मतलब जो इतिहास है फौज का चलाने का, बिहेवियर करने का, यो कहीं ना कहीं वो काम में आ जाता है। और वो लोग, ये बात सबको पता नहीं होती। ये बताने का मकसद यही है कि ये सारी बात इतिहास में नहीं आती, या ऐसी जब हम बोल रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं, और हम बताना चाहते हैं कि कितना फौज का जो काम करने का ढंग है, उसमें अभी रिस्क लेके करना पड़ता है। जैसे चीफ मिनिस्टर ने बुला दिया, मेरा एक्सपेंशन गया, मेरा रिपोर्ट गया आर्मी हेडक्वार्टर में कि आपने कैसे बुला दिया बिना परमिशन क्योंकि
सिविल के साथ इस तरह जाके करना मना है। हाँ, आपने अपने ऊपर वाले अधिकारी से परमिशन लेना चाहिए। तो हमने बोला परमिशन कोई देगा ही नहीं, ये बात है ही। अगर कोई आप कहीं कहीं भी जाए, ऐसे चीफ मिनिस्टर कहीं भी जा नहीं सकते, फिर वो भी ऐसे करेंगे। ये तो हमारा था कि हमने बता दिया कि ऐसे से अलग किस्म की बटालियन है, इसलिए वो आ गए, नहीं तो वो भी ऐसे नहीं थे। हाँ, ये भी बात है। तो ये सारी चीजें ना अलग अलग किस्म की है, जिसका इतिहास में नहीं स्थान होता है, लेकिन बाकी सब लोगों को पता है, जवानों को पता है, जो उस समय जवान थे वो पता है, अभी रिटायर होंगे वो पता है। हमारे साथ जवान जो थे घास में सोए थे, लीच काट रहा था, एक काट रहा था, कैसे सब याद करते वो पता है, लेकिन ये सब इतिहास में नहीं आएगा। इतिहास में नहीं आया। हम लोग लिखते हैं कि कहाँ गए वो लोग, हम लिखते हैं एक एक इतिहास में, तो कोई छपेगा कोई नहीं छपेगा, फिर वो अंग्रेजी में होगा। पढ़ने वाले लोग ज्यादातर हिंदी होते हैं, सारा अपना इंटरव्यू अंग्रेजी में होता है। हाँ, तो वैसे आपको पता है भारत के अंदर 3% लोग ही अंग्रेजी हाँ, पढ़ना लिखना जानते हैं, 90% लोगों के बारे में पता नहीं होता। नहीं होता। इसलिए सारी अच्छी चीजें जो है अगर उनके सामने लाना है, तो जैसे प्रधानमंत्री अपना हिंदी हमेशा बोलते हैं, हिंदी में सब करते हैं, वैसे हिंदी में करना चाहिए, ताकि सभी चीजों को भी लोगों को पता चल गया और उनके मन के ऊपर वो असर होता है, अच्छी तरह से समझ आ जाता है। यही बात है। राइट सर, राइट। हाँ, ये था 16 बिहार का, 9 बिहार का एक्सपीरियंस, 11 बिहार का, 16 बिहार। 16 बिहार, राइट। हाँ, अलग अलग, वहाँ नागालैंड मिजोरम, ये 11 बिहार कश्मीर और 16 बिहार का जो था नया। सर आप जो ब्रिगेड कमांड किए थे उसके बाद तो कर्नल के बाद तो ब्रिगेडियर बने थे। हाँ, ये सिलेक्शन होता है ना। हाँ, मतलब ऐसे कि फौज में 3 सिलेक्शन होता है, एक मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल, 2 सिलेक्शन में अगर उत्तीर्ण हो जाओगे तब फिर तीसरा सिलेक्शन ब्रिगेडियर के। राइट, राइट। अगर सिलेक्शन उत्तीर्ण नहीं होता है तो कर्नल तक रैंक आपको मिल जाता है बिना सिलेक्शन का, फिर बटालियन कमांड करने के लिए नहीं मिलता। अच्छा, बटालियन कमांड वो पे एंड इंसेंटिव हिसाब से और बाकी सर्विसेज जो है उनके साथ तुलना करके कि फौज को भी उसका फायदा मिलना चाहिए, तो कर्नल सब बन जाते हैं। राइट, राइट। लेकिन ब्रिगेडियर के लिए वो सिलेक्शन होना पड़ता है, मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल टू ब्रिगेडियर, फिर वो सिलेक्शन। तो हमको दिया था भूटान में, भूटान बिनापुर में थे, भूटान में चाइनीज, भूटान ब्रिगेड था वो भूटान में चाइनीज के खिलाफ प्रोटेक्शन करने के लिए, भूटान आर्मी को मदद देने के लिए हम लोगों का नियुक्ति हुआ था। तो हम लोग वहां जाते थे, ट्रेनिंग करते थे और वैसे भूटान आर्मी के साथ समन्वय होता था, ताकि कल अगर जरूरत लगे तो फौरन ये ब्रिगेड जाकर के भूटान के साथ मिलजुल के कार्रवाई कर सके। इस तरह से मुझे वहाँ एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैं सिकंदराबाद में था, जब कारगिल युद्ध हुआ तब हमको उठा करके रन ऑफ कच्छ में डाल दिया, डेजर्ट में। अच्छा। क्योंकि अगर कारगिल वहां से पाकिस्तान कर रहा है तो दूसरे तरफ से हम लोग फ्रंट खोलना चाहिए ताकि उसके बाद असर पड़े। ये सबको पता नहीं है, लेकिन पता नहीं होता, क्योंकि ऐसे की सारी चीजें बताया नहीं जाता है, वो उस समय किया जाता है, क्योंकि नहीं तो आप प्रेशर कैसे कम करोगे। जैसे इस तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है, आप दूसरे तरफ प्रेशर करो, उसका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम ये डेजर्ट में गए थे। फिर तीसरी दफा हो गया पार्लियामेंट पे अटैक, उस समय फौज चलेगी, फिर हम उसके बाद चले गए। पार्लियामेंट अटैक होता तो सारी फौज जो है पंजाब बॉर्डर पे लग गई थी, तो हमको वहां चला गया। तो इससे मुझे महाराष्ट्र में पोस्टिंग कभी नहीं मिला, पुणे मुंबई में। अच्छा। जबकि मैंने मंगा था कि मुझे पुणे या मुंबई में पोस्टिंग दे दो, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूँ, कम से कम एक पोस्टिंग मिलना चाहिए रिटायर से पहले 35 ईयर्स के बाद। तो मुझे एक भी नहीं मिला। सब बाहर। तो ठीक है, सब ऐसे होते, कोई बात नहीं, हम लोग जब। और फिर बाद में मुझे मिला था वो, हम लोग राज्य सैनिक अधिकारी के तौर पर गए थे रायपुर में, छत्तीसगढ़ सरकार के यहाँ, जहाँ की आदिवासी जो इलाका है उनका थोड़ा सा देखभाल करने के लिए हम लोग उस समय इस काम में थोड़ा मशहूर। तो ये हमारा सारा हिसाब किताब फौजी जीवन का
अभी आप बताइए क्या करो। नहीं, बहुत ही सर, व्हाट आई कैन से, बहुत ही आपका एक्सपीरियंस्ड लाइफ है इन द आर्म्ड फोर्सेस। इसमें बहुत कष्ट बहुत ही करना पड़ा, लेकिन उसके अलावा जो होता है ना फिलोसफी ऑफ आर्मी लाइफ जो हम सीखते हैं कि लेट देयर बी एनी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। दिस इज सॉल्यूशन। तो कभी ऐसे नहीं बोलना कि मुझे प्रॉब्लम है, बोलो मेरे पास 10 सॉल्यूशन है। पहली बात। दूसरी बात, कोई आपके मुंह में आके नहीं देगा, ठीक है, आपको झगड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए भी झगड़ना पड़ेगा, अच्छी चीज करते हैं ये बताने के लिए भी झगड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने कानून के अनुसार कर दिया इसलिए सब खुश हो गए, नहीं। लोगों को ये लगता है कि उनका भी अपना क्या अब देखिए देश में अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है कोई भी कलेक्टर वगैरह, तो सब खुश नहीं होंगे, उनको थोड़ा सा अलग किस्म का खराब। हाँ, लेकिन हमको ऐसे नहीं, फौज में जो करना है वो अपने इससे करना है। तो वो जो बातें सारी बातें नजर में नहीं आती, लेकिन हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे नीचे जवान आते। अभी हम लोग जब फील्ड एरिया में होते, सवेरे से चाय का घूंट लेने से शाम तक जब खुराटे मारते, सब पता होता है कि देनेतर भी होता है वो गार्ड के तौर पर। जैसे नागालैंड में मैं सोया हूं, एक या ऐसे इसका बैम्बू का वॉल, और यहाँ सेंट्री है। क्यों? सेंट्री प्रोटेक्शन के लिए। तो जो खुराटे ले रहा है, चाय पी रहा है, उठ करके क्या कर रहे, क्या बोल रहे टेलीफोन से, क्या कार्रवाई कर रहे, सब उसको पता है। मतलब आपके करने और बोलने दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपने जो बोला वही करके दिखाना है, जो करना है वही बोल के दिखाना है। ये सबसे फौज का बड़ा गुण है, क्योंकि जवानों का भरोसा बढ़ जाता है। राइट राइट। और जो खाना करे वही खाना करे। जो भी हमने एक दफा में अच्छे से गया, एक दफा खाना खा रहा था, उसने रोटी ला के दे दिया, ऐसे रोटी में काला 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 ऐसे कुछ था तो मैंने सोचा कि इसके अंदर जीरा डाला हुआ है, काला जीरा, क्योंकि तो मैं काला जीरा समझ के रोटी खा लिया। और क्या गया, सब 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 रोटी मत खा मिला। मैंने बोला क्या क्या हो गया, तुमको बता? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बाद में बता दिया साहब, वो आटा था, एयर ड्रॉप से लाया था नागालैंड में, 3 महीना पड़ा हुआ था, उसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे, तो आटा के अंदर कीड़े वैसे ही बना दिया था, क्योंकि एयर ड्रॉप नहीं हुआ था। बस वैसे हमने, और हमारा कोई कंप्लेंट नहीं, जो ऐसे खाता है वैसे करे जैसे। लेकिन जवान लोग हमारे इन्फेंट्री के अंदर कहीं भी जाओ, जंगल में पानी बरस रहा है, खाना बड़ा अच्छा, इतने से इसमें खाना जो भी है चटक मटक बनाते थे, जितना भी थोड़ा सा मसाला है ये है, पानी में मार के खा लो। पैशन, कुकिंग इज पैशन। ये हम लोग सुनते हैं रेडियो के ऊपर, जब संजय कपूर बोलता है या कोई दूसरा मास्टरशेफ बोलता है कि कुकिंग इज पैशन, बट व्हाट इज पैशन, ये हम लोग जवानों से सीखना चाहिए। इतना बड़ा मूली होगा जिसके अंदर लकड़ी होगा, मूली के अंदर ना, मूली काटते लकड़ी, उसी को काट करके, इतना बड़ा बैंगन को काट करके, इतना बड़ा पंपकिन को काट करके इतना अच्छा उसका भुजिया बना देंगे। ये एक उनकी काबिलियत है। तो इस तरह से वो ये बाकी लोग बताएं, लोग क्या समझते हैं फौज को हर चीज मिलती है, अच्छा खाना, अच्छा तनख्वाह, नहीं। आपको अच्छा लगेगा, हमारे पास जो पानी के लिए टैबलेट थी नागालैंड में, मतलब पानी लेना, उसके अंदर वो टैबलेट डालना क्लोरीन का, और फिर आधा घंटे के बाद पीना, ताकि वो पानी आपको सिरोसिस ना हो सके, या आपको काबिल जिसको बोलते हैं ना के। तो अभी चलते चलते में लोग 20-20 किलोमीटर ऐसे ही पानी का पकड़ लिया मग, लोग ऐसे ही पीते थे। हम बोलते थे भाई मग डालो पहले पानी। तो वो जो टैबलेट्स थे, वाटर स्टेरलाइजिंग टैबलेट्स, आपको आश्चर्य लगेगा, वो 1-1 साल के एक्सपायरी हो चुका था। वही इश्यू है, क्योंकि पहले दफा गई थी फौज। क्या अब बता ना, हाँ बता दिया आएगा, लेकिन तब तक तो डाल दिया, काम किया उसने, हमको पता है, हमने किया, हमारा पेट खराब नहीं हुआ। ऑब्जर्व जरूर किया। या दूसरी जगह गए, पानी नहीं है, नाले का पानी लाल है, जो सोए थे वो बेडशीट निकाल दिया, क्योंकि बेडशीट हम कैरी करते साथ में, बेडशीट को 4 फोल्ड किया, वो नाले का पानी बाल्टी में डाल दिया, नीचे उबालते रहे, लाल पानी रह गया, कि उबाला आधा घंटा,
और वही पानी फिर वो छीन करके पी लिए, लाल पानी क्योंकि नाले का पानी था। पानी कहाँ से? आज लोग जो अपना पानी फिल्टर वाटर ये बोलते हैं, आप लोग जब जाओगे ऐसा में ऐसे रहना पड़ेगा, तभी तो आप लोग दुश्मन के साथ ये करोगे। वॉर्स आर नॉट फॉट इन अ ट्यूबलाइट एनवायरमेंट अंडर एसी एनवायरमेंट। ऐसे ही आपको जाए कितना भी आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कितना भी दे, डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां जाके एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए तो आदमी की जरूरत पड़ेगी, वहां जाके आदमी के साथ मिलाप करने के लिए आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फेंट्री स्टिल रिमेन्स। चाहे जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डेवलपमेंट करो, एयरक्राफ्ट लाओ या हवाई जहाज, जैसे मैंने बोला भूटान में, मैंने बोला भाई देखो अभी आप कैसे हमला करो ये हवाई जहाज से उसके ऊपर, और फिर वापस डाइव करके ये पुल अप कैसे आओगे, सारे पहाड़ है, सब कठिन है, बहुत कठिन है। फिर वहां से कहां से लाओगे? अमेरिका के पास पहाड़ नहीं है तो ऐसे नहीं जहाज निर्माण करता। बाकी देशों में इतना ऐसे हमारे जैसे एरिया नहीं है, जैसे डेजर्ट हो गया, ये हो गया, उनका जो अपना है फौज चला जाता है, जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमारे लिए अलग किस्म की, और उतना पैसा हम खर्च नहीं कर सकते। जिस तरह से उस तरह से डेवलपमेंट होने किया, ये जहाज करवा दिया या राफेल ये करवा दिया, उसका मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी नहीं देते, उसका स्पेयर पार्ट, वो स्पेयर पार्ट वैसे नहीं देते। लड़ाई होने के बाद जैसे हमारे पास 71 वॉर में रशिया का स्पेयर पार्ट मिलना था, कारगिल वॉर में कहाँ स्पेयर पार्ट मिला? मैं जब गया हवा एक जहाज के अंदर, वो पनडुब्बे में ठोक ठाक कर रहे थे। अच्छा। कारगिल युद्ध के समय मैंने बोला क्या चल रहा है यार? तो सर क्या करें, हमारा 35% ऐसे, क्यों? स्पेयर पार्ट ही नहीं आया है रशिया से। तो ऐसे हालत में आपने लिया जरूर, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, तो आखिर में निर्भर किसको पे रहना पड़ता है? वही दो टांग वाला आदमी, जिसको चपाती दे दो, राशन दे दो, खिचड़ी दे दो, कहीं भी चला जाएगा। दैट इज ब्यूटी ऑफ द, और तभी जाएगा ये बाकी के जवानों का अधिकारी के ऊपर विश्वास है। क्यों विश्वास है? वो देखते हैं कि वो अपने साथ ही वो रहते हैं, जैसे सोते वैसे सोते, जैसे बारिश है वैसे ही बारिश में, जैसे बर्फ है वैसे ही बर्फ में वो चलते हैं, जैसे खाना खाते हमारे साथ, और वो बोलते वही करते हैं। तो एक किस्म का जिसको बोलते हैं इफेक्टिव लीडरशिप, डिसिप्लिन लीडरशिप, ऑनेस्ट लीडरशिप जो है वो में उस पर काम चल रहा है, और वही हमारे हिंदुस्तान आर्मी को आगे ले जा रहा है। सर जैसे आपको बताया था, मतलब आई एम ट्राइंग फॉर यू टू अरेंज अ ट्रैवल टू बांग्लादेश। देखिए पार्डन, आपको जैसे बताया था सर दैट आई हैव बीन टॉकिंग टू पीपल टू, या इट विल बी आवर प्लेजर, बिकॉज़ हम लोग बोलते रहते हैं तो क्या हुआ था, कैसे गए थे, ये हुए थे, बिकॉज अभी हमारे दोस्त ने, हम साथ थे उस समय हिस्सा लिए हुए, अभी उसमें से बचे कुछ नहीं, 2 बचे हुए हैं जो कि उस समय 2 क्या, हाँ ये, वो भी एक जो था वहाँ ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में था, और एक दूसरा जो था होश नहीं है, एक यादव है, मैं वो अभी उनको ये भी दिखाई नहीं देता है। तो अभी बच्चे भी खुशी भी बहुत कम है जब से लड़ाई के समय, इसलिए हमें भी यहाँ अच्छा है। यहाँ मुंबई एरिया में, एरिया हेडक्वार्टर महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा एरिया, उन्होंने वेटरन का सम्मान किया था, और उस समय हमें बुलाया था जो इंडो पाक वॉर के अंदर जिन्होंने हिस्सा लिया था, और वहाँ इंटरव्यू लिया हुआ था। तो एक वो बात अच्छी की थी महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा एरिया में, जहाँ वो लेफ्टिनेंट जनरल HS कालो थे एरिया कमांडर, तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा अरेंज किया था। तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह से मुंबई में जो वेटरन्स थे उनको बुला करके उनका सम्मान किया। थैंक यू मिस्टर दास गुप्ता, थैंक यू सर, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके साथ बात करने के लिए अच्छा लगा, क्योंकि आपके दिल में जो सवाल है और जो उसका जवाब है बाकी लोगों तक पहुंचना चाहिए।
कि काफी सारी बातें लोगों को पता नहीं होती है, नहीं है। और फौज के बारे में हिंदी फिल्म देख करके या पिक्चर देख के उनका अंदाजा हो जाता है। हमारा चलो काफी फिल्म इंडस्ट्री भी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन उतना सारा दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो सेंसरशिप का भी आता है, हाँ, कुछ उसके अंदर रे भी आता। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। बाय। फिर Bye, मिलेंगे, bro. फिर बात करेंगे सर। ओके बाय। ओके सर, बाय।